સાથે એક વાત સારા સમાચાર આપું તમને આજે બધાને કે આજે તમે બધા લોકો અહીંયાથી એક સરસ હેલ્ધી કોલ્ડ ડ્રિંક પીને જજો બહાર. ગણપતિ દાદાની પ્રસાદી નથી હો, પણ પ્રસાદી તરીકે પણ લઈ જજો. એટલે તમે કદાચ નહીં ટેસ્ટ કરી હોય એવું હેલ્ધી ડ્રિંક કોલ્ડ ડ્રિંક છે. એટલે અડધો ગ્લાસ પણ ટેસ્ટ કરજો, પછી તમને કદાચ બીજો એક આપો પડશે. અને બીજો જો અનુકૂળ આવી જાય તો બીજો પણ બીજો ના નહીં પાડતો. એવું નથી, કોઈ લિમિટ નથી, અનલિમિટેડ. તો દોસ્તો આજે સરસ વંદના મેડમે આપણને એક બિઝનેસ પ્લાન બતાવ્યો. કરોડ રૂપિયા કમાવાની તમને ઓફર કરી છે. કરવું ના કરવું, કમાવું ના કમાવું એ તમારા હાથની વાત છે. પણ જો કદાચ તમે મનમાં ડિસાઈડ કરી લીધું કે એક લેડી જો આ કરી શકતી હોય તો આપણા બાળા આપણે મુસાફર તો ખરા ને કાઢી નાખી તો ખરી ને. તો કેટલા લોકો પૈસા કમાયા છે એ જોવું છે બધા નવા લોકો જોઈએ ને આ કેસે તો 500 રૂપિયાથી લઈ અને જે વ્યક્તિ 50,000 રૂપિયા સુધી આ બિઝનેસમાંથી કમાયા છે એઓ અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવશે, પોતાનું નામ, કેટલા સમયમાં કેટલા રૂપિયા કમાયા. તો જલ્દીથી વેલકમ 500 થી 50,000 ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. બધા તાળીઓ પાડો બધા ઉભા થાય. બધા મેચ ભાઈ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ નામ રાકેશ ચૌહાણ છે અને આ બિઝનેસ છે તમારી જેવી રીતે 3 મહિના પહેલા મારા ફ્રેન્ડે મને મીટિંગ બતાવવામાં આવી હતી. બહુ બધી વસ્તુની ખબર નથી પડી, ખાલી એ વસ્તુની ખબર પડેલી કે પ્રોડક્ટ જબરદસ્ત છે, પ્લાન બી બહુ જબરદસ્ત છે અને આ બિઝનેસની સ્ટાર્ટ કરી 1 મહિનાની અંદર વધારતો નહીં 24,500 રૂપિયા અર્ન કરેલા છે. અને લાસ્ટમાં એક વસ્તુ કરવાનું હું કહું છું, कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता. और मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं राकेश जी हार को हमेशा अपने लक्ष्य से दूर ही रखना है क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता. और लास्ट में जाते जाते मैं मेंटोर के लिए उनके लिए थैंक यू सो मच. एंड रोशन भाई आपने इतना सपोर्ट किया, ओके गाइस, थैंक यू सो मच. હું બીએસસી નર્સિંગની સ્ટુડન્ટ છું અને સાથે લાઈક આપણે ન્યૂ સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે બધું લાઈક બાયોલોજીકલ અને ટેકનિકલ બધી ખબર પડે તો એમનો રેફરન્સ લીધો તો મારો આગળ બિઝનેસ વધારવાનું કર્યું. હવે સ્ટડી સાથે બધા સાયન્સ લીધું હોય પેરામેડિકલનું સ્ટડી કરવાનું એટલે બહુ ટફ છે ત્યાં સાથે કરું, બટ એનું રિઝલ્ટ એટલું સારું હતું કે મને પર્સનલી બી મારું વેટ આની કરતાં બી વધારે હતું. તો આનાથી 5 કિલો રિડ્યુસ થયું છે અને ખાસ એવું આનાથી સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. મારે એબ્રોડ જવું હતું આગળ ફર્ધર સ્ટડી માટે અને આગળ સારી જોબ માટે, પણ એવું લાગે છે કે આ બિઝનેસમાં સારું કમાઈશ તો અહીંયા સપોર્ટ. ઇમ્તિયાઝ અજમેરી છે અને 2 મહિના પહેલાં મેં પ્રોડક્ટ લીધી હતી. 1 મહિનો મેં યુઝ કરી અને એનું ઘરમાં જ સારું એવું રિઝલ્ટ પડ્યું અને 1 મહિના મેં બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો તો 12,500 રૂપિયા. વાહ. नमस्कार. नमस्कार. सारवाड़े नारौल से आऊँ और 2 महीना हुआ है, इसमें 24,000 रुपये आया. वाह. दोस्तों नमस्कार. नमस्कार. और कदाच मारा अभिवादन की कमी हसे फरीથી મોકો આપો. दोस्तों नमस्कार. नमस्कार. થેન્ક યુ. दोस्तों આ પ્રોગ્રામમાં થોડા ટાઈમ પહેલાં આવેલો. એના પહેલાંનો તો મારા ઘરનો તો એક પ્રોબ્લેમ હતો. મારી મિસિસની ઉંમર 63 વર્ષની, મારી 64 વર્ષ રનિંગ છે. એનો જે પ્રોબ્લેમ હતો કે જનરલી મેડમ જે લેડીઝ લોકો જે કપડાં ધોતા હોય છે એ લોકો 2 પગ વાંકા રાખીને કપડાં ધોતા હોય છે. પણ મારા મિસિસને છેલ્લા 3-4 વર્ષથી એવો પ્રોબ્લેમ હતો કે ઢીંચણ અને કમરની તકલીફ હતી. તો જમણો પગ એમને લાંબો રાખીને પછી કપડાં ધોતા હતા અને પલાટીવાળી જમવા નહોતા બેસી શકતા. તો આ પ્રોગ્રામ જ્યારે પહેલી વખત મેં જ્યારે જોયો, મેં વિચાર કર્યો તો બીજી કંઈ વધારે તકલીફ થાય ને ડૉક્ટરને વધારે પૈસા આપવા એના કરતાં એક વખત પ્રોડક્ટ લઈને કોશિશ કરી લઈએ. ડિસિઝન મેં મારી જાતે લીધું, વિધિન 5 મિનિટ્સની અંદર ડિસિઝન લીધું
એ પ્રોડક્ટને આ પ્રોડક્ટને મેં અઠવાડિયું યુઝ કર્યું પહેલાં મારા મિસિસને કરાવ્યું. અઠવાડિયા પછી અમારા મિસિસને ખબર બી નથી અને પોતે જે પોઝિશનમાં જે રીતે લેડીઝ કપડાં ધોવે છે એવી રીતે કપડાં ધોતા થઈ ગયા અને પલાટીવાળીને જમવા બેસતા પણ થઈ ગયા. તો એમના ખર્ચામાંથી બચી ગયા અને આ બિઝનેસના માધ્યમથી કોઈ બીજું જબરદસ્ત રિઝલ્ટ મળેલું છે. કટલાલમાં મેં જે પ્રોડક્ટ આપી તો એની અંદર એક રાજેશભાઈ કરીને છે, એમનું 95 કિલો વજન હતું અને એમના મેડમનું હતું 93 કિલો. એમને પ્રોડક્ટ આપી 1 મહિનો થયો છે. 1 મહિનાની અંદર એમની બોડીમાં જે ફરક પડ્યો છે, જે 55 કિલો વજન હતું એનું 83 કિલો વજન થઈ ગયું છે. મેડમ જે છે કૃષ્ણાબેન નામ છે, એમની સાથે જ્યારે ધીરે ધીરે વાત બી કરાવી દઈશ, મને ચેક કરવું હતું. એમનું 3 કિલો હતું, એનું 81 કિલો વજન થઈ ગયું છે. આવું જબરદસ્ત પ્રોડક્ટ છે અને આ બિઝનેસના માધ્યમથી મારી જે ઇન્કમ છે 23,250 રૂપિયા. વાહ. મારું નામ જ્યોતિદ્ર વાઘેલા છે. ભાનુભાઈએ મને 2 મહિના પહેલાં મીટિંગમાં બોલાવ્યો. એક્ટિવ અઠવાડિયાથી થયો છે અને 500 રૂપિયાથી ચાલો 500 રૂપિયા ગઈકાલે મારા ખાતામાં. વાહ. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम परेश मोरे. मैं 1 मंथ हुआ है, मैं स्टार्ट किया है काम. अभी ये मंथ मेरा 500 का इनकम स्टार्ट हो गई. વાહ. મારું નામ કમલેશ નાથાણી છે. મણિનગરમાં રહું છું. લોનનું કામ કરું છું. વંદનાબેન ત્રિવેદી બેને જેવી રીતે સમજાવ્યું સ્પષ્ટ એક ગુજરાતીમાં, હેલ્થ, વેલ્થ અને હેપીનેસ એ ત્રણેય વસ્તુ આમાંથી મળે છે અને પ્રોડક્ટ લેવી જ જોઈએ. મેં એક અમારા મિત્ર હતા, એને પગનો પ્રોબ્લેમ હતો, એણે પગમાં બેલ્ટ બાંધ્યો અને સાયકલ નહોતો ચલાવી શકતો. અત્યારે સાયકલ ચલાવતો થઈ ગયો છે અને બિઝનેસ એટલો સારો છે, કોઈ પણ જાતનું મૂડી રોકાણ છે નહીં. 7,400 ખાલી રાખવાના છે, પ્રોડક્ટ આપણે લેવાની છે. આ બિઝનેસમાં 4 થી 5 મહિના જોડાયો, 41,000 અને सर मेरा नाम सरफराज है. मैं सुरेश सर, मेरे को बहुत दिन से बोल रहा था दवा ले ले, मेरा भाई क्या है, क्या करना नहीं, कुतरा पर सोने से अपना आलू हो जाए, नहीं करने का. पूरा गुजराती नहीं है, गुजराती हिंदी पिक्चर है, पटना से मेरी काम जो है ना हार्डवेयर वाला काम, पंचर की दुकान है, बोता अपना दुकान है. हो गया 12 वर्ष. तब से मेरा कहा कि जिम करने का तो कोई जरूरत नहीं है, बॉडी फिटनेस है, लेकिन इसमें ना अपने 1 लाख रुपया डाल दिया दवा को, लेकिन साला हुआ नहीं. ऑपरेशन करवाया, सीटी स्कैन करवाया था, कहा नस अंदर दबी, ये बाहर करने के लिए सिर्फ ऑपरेशन करके चीरा मार के बाहर खींचना पड़ेगा. फिर भी नहीं करवाई, जो है गोली खाते रहो, अपना काम करते रहो. कहा नस गर्म हो जाने के बाद मेरा काम दर्द नहीं करता. फिर उसके बाद बैठ जाने के बाद एक पौवा उठा भी नहीं सकते, रोज 5 किलो तो भी मारने वाला. फिर जाकर सुरेश सर बोले कि ले के मैं एक दिन नहीं करने. 2 दिन यूज नहीं किया, तीसरा दिन देखूँ पैसा डाला हूँ 7,400 लगा तो करना पड़ेगा. सोने में तो काम आएगा. चलो तब 10 धारा क्यों, तब जाकर हमको रिजल्ट मिला. अच्छा વાહ. बोलता हूँ फ्रेंड सर के लिए. अब आज से मेरे को मैं 2 आदमी को जोड़ दिया, मेरे अकाउंट में 500 आया. वाह. हफ्ते महीना में सुरेश सर से ज़्यादा है इसमें लाके अपना यहाँ पर खड़ा. મહેશભાઈ ભગવાન મારું નામ છે. સુરત ગામથી આવું છું. મને આ બિઝનેસ સાહેબ ભાનુભાઈ સાહેબે સમજાવ્યા હતો. આ પ્રોડક્ટ મેં 2 મહિના પહેલાં લીધી હતી. મને રાત્રે ઊંઘ નહોતી આવતી. 2-3 વાગે આવે, કંઈ નક્કી જ નહીં ક્યારે આવે ત્યારે આવી. અત્યારે રાત્રે 11, 11:30 થાય, 10 વાગે ગયા પથારીમાં શું નડતો કલાકમાં ઊંઘ આવી ગઈ. 20 થી 22 દિવસથી આ 21,500 રૂપિયા મારા. વાહ. आवाज में दम नहीं है. नमस्कार. पहले तो मैडम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए. मैडम को दिल से सैल्यूट. राइट, मेरे अपलाइन है महेश भाई और मेंटोर है भानुभाई भरवाड़ सर, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी. मैं भी एक मार्केटिंग लाइन से ही काम कर रहा था, बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, रिजल्ट नहीं मिल रहा था और प्रोडक्ट भी इस कंपनी में काम कर रहा था. मुझे एक ही चीज़ का ज़्यादा शौक था, पैसा कमाना, और कोई शौक नहीं है, पैसा कमाना बस. तो सर ने कांटेक्ट में थे
12 महीने से मुझे बताया था, मैंने इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। फिर महेश भाई से मुलाकात तो उन्होंने बताने के बाद मुझे लगा चलो समझने में क्या तकलीफ है। तो 3 अगस्त से मैंने काम स्टार्ट किया, प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट में रिजल्ट मुझे ये मिला, मेरी वाइफ को है ना ये प्रॉब्लम था, सांधे का दर्द ज़्यादा रहता था, क्या है ना सांधा में दुखाव होता था। तो उसको मैंने सेटिस्फाई हुआ, अच्छा लगा और मैंने काम स्टार्ट किया 6 अगस्त को और 31 तारीख को मेरा पूरा काम खत्म हो गया और 22,500 इनकम किया। આ મહિનાનું ટાર્ગેટ શું છે તમારું? इस महीने का मेरा टारगेट है ये 9वें महीने के अंदर गणपति बापा के आशीर्वाद से और भानुभाई बरवाड़ सर की मैं मतलब सपोर्ट से और महेश भाई के सपोर्ट से 1 लाख प्लस की इनकम लेने का। વાહ, દોસ્તો 50,000 થી 1 લાખ રૂપિયા સુધી 50,000 થી 1 લાખ રૂપિયા ઇન્કમ કરી હોય જેવા દરેક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર મિત્રો જલ્દીથી ફટાફટ સ્ટેજ ઉપર આવી। नमस्कार दोस्तों। નમસ્કાર। आपके सर रायपुर से बिलोंग कर रहा हूँ। इसी अपॉर्चुनिटी जब मेरे सामने आई थी तब 40 साल हो चुके थे, कुछ बॉडी में अनइजीनेस लग रहा था और ये यूज़ किया तो कुछ एनर्जी लगने लगा। पहले दिन 4 दिन और हुआ, अच्छा लगने लगा, किया और काम स्टार्ट किया। आज 2.5 महीने ऊपर हुआ और आज मेरा इनकम 75,000 है। વાહ, ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો। ગુડ મોર્નિંગ। મારું નામ સાધુ ભાવેશ છે, હું બાવળાથી આવું છું। મારા મિત્રે મને સજેસ્ટ કર્યું હતું કે સારી વસ્તુ છે અને કીધું માર્કેટિંગ બધી, કારણ કે 1 વર્ષથી માર્કેટિંગ લાઈનમાં છું એટલે મને એવું લાગ્યું આટલી બધી પ્રોડક્ટ આવતી જ હોય છે તો આમાં કોઈ ફરક ના પડે, આપણો ધંધો બને ને પછી એટલે કંપની બંધ થઈ જાય, કારણ કે આપણે માર્કેટિંગમાં એટલે એક વખત કહ્યું હતું કે આજ આપણું કરવું છે બીજું કંઈ કરવું એમ નથી જતા, પણ એમાં મેડમે મિટિંગમાં કીધું કે બહુ જાતે ઉકાળેલું નહીં એ ટાઈમે, એટલે મને કોઈ લાઈન જોઈ લે એટલે મેં જોયો બિઝનેસ પ્લાન મને સારો લાગ્યો અને મારા વાઇફને રિઝલ્ટ મળ્યું। પછી મેં 15 દિવસ પછી કામ સ્ટાર્ટ કર્યું, આજે મારા 3 મહિનાથી આ કામ ચાલુ કર્યા, મેં 65,000 પ્લસની ઇન્કમ લીધી। 1 લાખ થી 5 લાખ 1 લાખ રૂપિયાથી લઈ 5 લાખ જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર મિત્રો કમાયા છે તે સ્ટેજ પર આવશે। તમે આવી જાઓ, વચમાં આવી જાઓ, કોઈ બેન નથી। નમસ્કાર। નમસ્કાર। મારું નામ કિંજલ માંડલિયા છે, હું ન્યૂ રાણીપથી આવું છું અને રેગ્યુલર મીટિંગ કરવાનો ફાયદો ઘણો થાય છે એટલે બધા પણ કરજો। આમાં કંઈક નવું રોજ જાણવા મળે છે અને અત્યાર સુધીમાં મારી ઇન્કમ થઈ છે 2 લાખ પ્લસ। નમસ્કાર। નમસ્કાર। એક સાથે બોલ્યા, મજા આવી, નહીં તો બધા એક સાથે ના બોલે, બરાબર છે। રોશન પટેલ નામ છે। આ પ્રોડક્ટ લેતા પહેલા 16 મહિનામાં 20 જણાને ના પાડી હતી, કેમ કે આ પ્રોડક્ટનું મારી પાસે નોલેજ નહોતું, પણ મારા મિત્ર જયસુખભાઈ સંચાનિયા સાહેબને મેં મારા ઘરે મારી મમ્મીની સંધિવાની ટ્રીટમેન્ટ માટે બોલાયા હતા। તો એ ટ્રીટમેન્ટ આપ્યા પછી સાહેબે કીધું કે હું ટ્રીટમેન્ટ આપીને જતો રહીશ, પણ જો રેગ્યુલર એક મારી જોડે મેગ્નેટિક મેટ્રેસ છે એની ઉપર સુવાથી સારું રિઝલ્ટ મળશે તો એમના વિશ્વાસ ઉપર પ્રોડક્ટ લીધી, રિઝલ્ટ મળ્યું। 3 માર્ચે પ્રોડક્ટ લીધી, એ રિઝલ્ટ મળ્યું, 3 માર્ચથી અત્યાર સુધીની અંદર 2,70,000ની ઇન્કમ જનરેટ કરી। વાહ, નમસ્કાર। નમસ્કાર। નવા કેટલા છે? ફર્સ્ટ ટાઈમ બોલો પેલા હાથ ઊંચો કરો નવા। હું છે ને આ બિઝનેસ બહુ પહેલા ચાલુ કર્યો, જે નવા છે ડિસિઝનની વાત કરવા અને ડિફરન્સની વાત કરવા આવ્યો છું। કિરીટભાઈ મહેરિયા નામ છે મારું, છોકરા ભણાવું છું, પણ જ્યોત્સનાબેનને ઇન્વાઇટ કરીશ કે બિઝનેસનો ડિફરન્સ જલ્દી મેં ચાલુ ના કર્યું અને શું તકલીફ છે। જ્યોત્સનાબેન અહીંયા આવો, ખબર પડે તમને કે આયા છે આજે ગણેશ ભગવાનનો દિવસ છે ને, ગણેશ ચતુર્થી, તો આજે મુહૂર્ત કરી દેજો, કારણ કે દરેક કામ આપણે મુહૂર્ત પર બેસાડીએ ગણપતિ। હવે આ જે બેન છે ને જ્યોત્સનાબેન અને હું,
આજથી લગભગ 13-14 મહિના પહેલા 12 ટેબલ ઉપર અમે ઘરને બેઠા હતા. મારા વાઈફ છે તે એક્સિડન્ટમાં મોત થઈ ગયા એટલે બાબો છે મારો. હવે બેબી બહાર ગઈ હતી એટલે મારા બાનું બંનેને બહાર જમવા જવાનું. જોતા બેન બેઠા હું બાબાને લઈને જમવા ગયો. 17.5 લાખ જમ્યું. આપણે રોકાયા બિઝનેસ થયો તો કેટલા લાખ થયા? 18 લાખ. વાહ. એ રોકાયા હતા, મીટિંગ એટેન્ડ થઈ, હું જતો રહ્યો ફરી આવ્યો ને ફરી મોડે તારે મને 12.5 લાખ કીધા હતા. એટલે હું 17.5 લાખ બહાર જઈને આવ્યો. આજ જે આ ડિસિઝન લઈ લેતો પૈસા જ છે. અને બીજી વાત કરું કે આ બિઝનેસની અંદર મારા નથી બહુ વંદર બેઠા તો પાછળ, પરંતુ એટલું કહી દઉં કે આ બિઝનેસની અંદર એવા માણસો ધર્માંગ પંડ્યા સર રાત દિવસ નહીં જોયા, તેજસ પંડ્યા સર રાત દિવસ, ઉર્મિલ સોની સાહેબ, એવી તમે જેવી તમારો જેવો સપોર્ટ જોઈશે ને બરાબર, ખાલી એમની આંગળી પકડી લો. પૈસા માટે કોઈ દિવસ કોઈનો પગ નહીં પકડો. 16 મહિનાની લેટ બી ભરી હો એટલે લેટ કરવું ના કરો તમે નક્કી કરી લે મિત્રો. 5 લાખથી લઈ અને 20 લાખ રૂપિયા સુધી જે કમાય 5 લાખથી 20 લાખ 50 બોલો ને બેવું બધું. જોરદાર તાળી. 50 નું કઈ નાખો પહેલે હું ભેગા કરું. નમસ્કાર. એક તો વંદનાબેન માટે બહુ તારીફ છે. લેડીઝમાં આરતીબેન અને વંદનાબેન બે મીટિંગ લઈ શકે છે, કેમ કે અમારી તો હવે આ સ્વર પેઢી છે અને નાનું થઈ ગયું જેમ કરો પણ વંદનાબેન ને આરતીબેન બહુ સરસ મીટિંગ લે છે. કોઈ પણ જાતનો સપોર્ટ જોઈએ તો કોઈ પણ ટીમના કોઈ પણ આપે છે. કોઈ પણ ને તમે એમ કહેશો મારે આનું નોલેજ જોઈએ છે તો કોઈ ના નથી પાડતું. કોઈ અધર હશે, કોઈ પણ હશે. પેલા ભાઈએ કહ્યું, જયસુભાઈએ કહ્યું એમ કે તમે રોજ એક્યુપ્રેશર પોઈન્ટ કરાવશો, મને રોજ બોલાવશો, રોજ કી આપશો, એના કરતાં મેટ્રેસ લઈ લો તો તમારે કોઈ રોજ આવવું નહીં પડે. મારું કામ પણ યોગ અને એક્યુપ્રેશર પોઈન્ટનું જ હતું. તો હું એ જ પણ કહું છું, જેટલું લેટ કરશો એટલું તમને નુકસાન છે. એમ કરતા અત્યારે મારે આજે ઓફિસનું 1 વર્ષ થયું. 1 વર્ષ તો આજે 1 વર્ષ ઓફિસને થયું. મણિનગર અપ્સરા રાતનાની સામે ઓફિસ છે મારી. ત્યાં કોઈ પણ બાયોટેરિયમ મેટ્રેસ હોય કે કોઈ પણ કંપનીનું કામ હું નથી કરવા દેતી, પણ મારું બાયોટેરિયમ મેટ્રેસ કંપનીનું કોઈ પણ હશે તો એ બધા આવીને વર્કઆઉટ કરી શકો છો. એમ કરતા મેં આંકડો ગયો 18 લાખ વર્ષ છે મારું. પણ મારે હું 18 લાખ એટલે કમાઈ, પણ મારી ટીમમાં આવી છોકરીઓ છે, છોકરાઓ છે જે 20-20 લાખ મારાથી આગળ જતા રહ્યા છે. ઘણા તો એવા છે લેડીઝો તો જેને તકલીફો ઘરમાં હતી, અત્યારે રાજકોટમાં કેટલું સરસ મોટો સેમિનાર કર્યો જેમાં તકલીફો એવી હતી જે કોરોના ટાઈમમાં એમનું બંધ થઈ ગયું હતું રેસ્ટોરન્ટ્સ ને બધું, તો એમાંથી એમ કરતા અત્યારે એ લોકો 20 લાખ ઉપર 25 લાખ ઉપર પહોંચ્યા છે. એવી આપણી ટીમમાં બધા ઊભા થાય. હું એકલી રોજ કોઈકને રોટલી ખવડાવું એના કરતા રોટલી કમાતા કરવાનું એ બહુ જરૂરી છે. હું એમને કહું છું મહેનત કરો તો તમને બધું મળશે, તમારે માગવું નહીં પડે. તો માગો એના કરતા આપો એમાં વધારે છે, પણ એવી રીતે આપો કે એને મહેનતથી આપો તો જ કામનું છે. રોજ ખવડાવશો તો એ માણસ આળસુ બની જશે. તો એ માણસને આળસુ નહીં બનાવવાનો, આપણે એને મહેનત આપવાની. મહેનત કરાવીને એના પગ પર ઊભો કરશો તો એ આખી જિંદગી એના કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરી શકશે. નમસ્કાર, મારું નામ નિલેશ પટેલ છે. મેં ઈ બિઝનેસ લોકડાઉનમાં ચાલુ કર્યો. 15 મહિના ટ્રેનિંગ ચાલુ કર્યો. આજે મારા 15 મહિના 24 દિવસ થયા બિઝનેસમાં. ટોટલી કમાયું છે 20 લાખ 90,000. મારા ભાઈને વેરિકોસ વેન હતું અને કમાતું લાવો 15 દિવસમાં રિલેક્સ થયું. પછી મને
વર્ષ આ વસ્તુ ઘરે ઘર પહોંચાડવા જેવી છે. પછી 5 વર્ષ જોયું નથી. પાર્ટ ટાઈમ કામ કરું છું. મારા ભાઈ જોબ કરે છે એટલે ટાઈમ ઓછો પડે એટલે ઘરે પડે તો પાર્ટ ટાઈમમાં મળી છે અને આગળ વધુ. મિત્રો ખ્યાલ એક 64 વર્ષના જ્યોત્સનાબેન પણ જો આમાંથી 20 લાખ 18 લાખ કમાઈ શકતા તો મારા ખ્યાલથી એમનાથી મોટું કોઈ નહીં થાય. ઉંમરનો કોઈ બાદ નથી, કોઈ જ્ઞાતિનો બાદ નથી, એજ્યુકેશનની કોઈ જરૂર નહીં. અહીંયા કોઈ અહીં બોલે તો હું બીકોમ છું, અંગૂઠા છાપ પણ અહીંયાથી 25-50 લાખ રૂપિયા કમાઈ શકે. અને મગજમાં ઘણા લોકોને એવું હોય કે આવું તો મને બોલતા નથી. એટલે ભાઈ વગર ભણેલા જે બોલે છે ને એ ભણેલા નહીં બોલીએ. ખ્યાલ આવે? કારણ કે અનુભવના આધારે બોલી શકે અને અનુભવ આથી પુષ્કળ મળે. આગળ એક સ્ટેપ જઈએ. 20 લાખથી 50 લાખ રૂપિયા સુધી જે મિત્રો કમાય છે, 20 લાખથી 50 લાખ એવા દરેક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર જોરદાર તાળીઓ સાથે એમને નમસ્કાર. વંદનાબેન માટે જોરદાર તાળી થઈ જશે. મારું નામ ભાનુભાઈ ભરવાડ છે. હું પણ ગામથી જ આવું છું અને મેં શરૂ કરી 9-8 બે બિઝનેસ શરૂ કર્યો. આમાં 8મા મહિને જે લોકો જોઈન થાય ને એ ક્રાંતિ લાવે. કારણ કે આપણો આઝાદ દેશ 15 ઓગસ્ટમાં થયો એટલે ક્રાંતિનો જ મહિનો. એટલે આ મહિનામાં જે લોકો જોડે છે એ બધું સારા મારું કમાશે. અને અત્યાર સુધી મારા સિનિયર યોગેશભાઈ સાહેબે મને બિઝનેસ બતાવ્યો હતો એટલે શીખવાડી રીતે મેં કામ કર્યું. અત્યાર સુધી 21,72,060 રૂપિયા કમાઈ ચૂક્યો. મિત્રો મેં જે પૈસા કમાયા કંઈ જાદુ નથી કર્યો. સાહેબે શીખવાડી રીતે કામ કર્યું. લોકોને કહેતો રહ્યો. લોકો આવતા ગયા, લોકો જોડાતા ગયા. તો આમ રિયલમાં એવું હતું કે તમને એક સ્ટોરી કહું નથી, એના તમને થોડો અનુભવ થશે. એક વેપારી હોય છે, વેપારી ઘોડાનો વેપાર કરતો હોય. એમાં એને ઘોડો બીમાર થઈ જાય તો બી ઓલા જોડે જાય ને રિપેર વાળો દવાવાળા જોડે ગયો. આ ઘોડો બીમાર થઈ ગયો, દવા તો કરો. ઓલા ભાઈએ દવા આપી, ત્યાં લઈને મોઢામાં નાખી દેજો, ડુંગળી નાખી. તો ડુંગળી નાખીને દવા નાખવા જેટલો ઘોડાએ ફૂંક મારી દીધી. ગોળી હતી ઓલો વેપારી ખાઈ ગયો. મારે એવું થયું હતું, યોગેશભાઈને ગોળી પીવડાવવા ગયો હતો. યોગેશભાઈ મને ગોળી પીવડાવી દીધી. બરાબર, બધું માથું ખંજો કરો 2 લાખ રૂપિયા કમી મારો ઘોડો માંદો થઈ. મારે પોતાના ઘણા બધા બિઝનેસ છે. LICમાં એજન્ટ છું. મારે પોતાના બાળકની ઘણી બધી ઇન્કમ છે. 2 ઓફિસ છે મારી પોતાની. LICમાં MDRT એજન્ટ છું. ટ્રાન્સપોર્ટનો ધંધો છે, રેતી સપ્લાય કરું છું. એટલે ઘણા બધા 3-4 ઘોડા તો દોડ જ છે. એમાં નેટવર્કનો ઘોડો મારો માંદો થઈ ગયો. એ બધું યોગેશજી જોડે જવું તો મારો ઘોડો તેજ થઈ જાય. યોગેશ બીજું કોઈ ઘોડો જ મારી નાખે, નવો ઘોડો આપી દે. એટલે કહેવાનો મતલબ મેં આગળ યોગેશભાઈની ઇન્કમ જોઈ. કારણ કે હું જે કંપનીમાં કામ કરતો ત્યાં મારી 1200 માણસની ટીમ હતી. 2 વર્ષની મારી મહેનત હતી, પણ ઇન્કમ હતી 3 લાખ. યોગેશજી જોડે મેં કમ્પેરિઝન કર્યું તો યોગેશભાઈની ઇન્કમ હતી 15 લાખ રૂપિયા. પૈસા સારા આવે. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણિકતા આપવાની હોતી નથી. જોયું બેંકનું સ્ટેટમેન્ટ જોયું, આ જોયું, ભાઈ સ્વીકારી લેવું પડે. કારણ પૈસા તો આવે અને પ્રોડક્ટનું રિઝલ્ટ તો હતું જ તે. પ્રોડક્ટનું રિઝલ્ટ તો મળી ગયા હતા. તરત મેં કામકાજ ચાલુ કરી દીધું. બધા લોકોને ભેગા કર્યા. કોઈને હા પાડી, કોઈ ના પાડી, કોઈ હજુ વિચારી રહ્યા છે, કોઈ કહ્યું જોઈએ છે. કહેવાનો મતલબ કોઈ ચાલે કે ના ચાલે, પણ તમે ચાલશો ને તો દુનિયા ચાલશે તમારી સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ये प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन करवाया था मुझे मेरे हस्बैंड। कोरोना के समय सब फ्री बैठे थे उस टाइम पे, तो कोई जाने के लिए कोई चाय नाश्ता नहीं, यहाँ पे उसकी होटल में प्रोग्राम था, तो उसका मुझे वो निकले तब उसका सेंटेंस याद था. वो बोले थे पता नहीं क्या होगा चाय नाश्ता करके आता हूँ. वही सोचने आए थे और हमारे ग्रेट शैलेश सॉरी जितेंद्र भाई शर्मा सर ने प्रोग्राम लिया था उस टाइम पे. और मेरे यहाँ पे जितने भी नए लोग आए हैं, तो नए लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हम लोग जो खड़े हैं ना, वो डिसीजन की वजह से है. आज भी मैं थैंक यू बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को कि उसने ये डिसीजन लिया, उसकी वजह से हम यहाँ पे हैं. जैसे ही वहाँ पे प्रोग्राम फिनिश हुआ, ऑन द स्पॉट उसने डिसीजन लिया कि मुझे करना है.
क्या है बिजनेस वगैरह कुछ ज़्यादा इतना समझ में नहीं आया था, लेकिन करना है क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा इतना कुछ काम ऐसा था नहीं कि हम लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे थे। तो शुरू कर दिया और शुरू करते 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 आप लोगों को तो यहाँ पे फैमिली को ना सबको पता है ना कि 6,000 आ रहा है, लेकिन हमको पता नहीं था। दूसरे दिन मीटिंग अरेंज किया, उर्मिल भाई और तेजस पंड्या सर हमारे जो है उसने बहुत सपोर्ट किया पहले बार, एक बार उसके लिए तालियां। तो वो दोनों जैसे ही गए, टीम हमारे पास रेडी थी क्योंकि नेटवर्क तो सालों से कर रहे थे, तो वहाँ पे गए। उससे पहले तो 3 आइडिया गई, तो बोले हमको करना है, आपने किया है तो हमको करना है, क्या है कुछ समझा नहीं और पैसे डाल दिए। और ऐसे ही फर्स्ट डे पे हमारी 5 लॉगिंग हो गई और उसी टाइम से शुरू किया, तब से लेके आज तक रुके नहीं है। और सबसे चीज़ की नेटवर्क तो हर कोई करता है, लेकिन लीडर जो होता है ना वो अर्निंग हमेशा करता है। लेकिन सबसे बड़ा पेन जो है ना वो नीचे के लोगों को अर्निंग नहीं कर पाता है। खुद तो करता है लेकिन नीचे के लोग अर्निंग नहीं कर पाते, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है और हर इंसान की कैपेसिटी डुप्लीकेशन करने की नहीं होती है। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे कोई भी बंदा कैसा भी नॉलेज वाला आएगा ना, तो प्रोडक्ट्स हमारी ऐसी है, डुप्लीकेशन बाय प्रोडक्ट्स होता है और प्लान हमारा ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट पैसे आते हैं। और हमें आज मुझे ये खुशी है कि सालों से जो मैं नहीं कर पाई, अपने टीम के लोगों को जो अर्निंग नहीं दे पाई थी लास्ट बिजनेस में, वो इसमें मैं दे पाई हूँ। काफ़ी सारे मेरे नीचे लोग हैं जो लाखों की अर्निंग कर चुके हैं, तो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा यही खुशी है कि मैं तो अर्निंग कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ जितने भी लोग हैं तो वो भी अर्निंग कर रहे हैं। और काफ़ी सारे, सबसे बड़ी चीज़ की इसमें जो पैसे आते हैं, पैसे तो कहीं से भी लोग इंसान है ना वो अपनी जीवन जरूरियात की चीज़ें कमा ही लेता है, लेकिन इसमें जो पैसा आता है वो ब्लेसिंग के साथ होता है। किसी की दुआ है साथ में, किसी के घर की रोटी चल रही है, किसी के पैरों की जो प्रॉब्लम थी चली गई, किसी का आंखों का विजन आ गया, किसी का पार्किंसन चला गया, किसी को घुटने के 4 लोगों के ऑपरेशन अटवाए, नी रिप्लेसमेंट जो बोलते हैं ना 5-5 लाख के खर्चे से बच गए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की दुआ के साथ जो अर्निंग आ रही है ना वो आ रही है, तो वो एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें। और यहाँ पे जितने भी नए लोग आए सबसे बोल रहे हैं कि डिसीजन जल्दी ले लेना, क्योंकि आजू बाजू वाले को पूछने मत जाना। आपने प्लान देखा है तो आप डिसीजन लोगे तो उसका रिजल्ट आप देख रहे हो यहाँ पे कि क्या कितने। और अभी हमारे बहुत सारे अपलाइन लीडर है जो आपको बताया कि जो करोड़ से भी ऊपर अर्निंग कर चुके हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिसाइड करते हो, जैसे हमने पहले भी मैंने बताया था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप कितना अर्निंग चाहते हो। तो यहाँ पे सबको देख के लास्ट में एक चीज़ बताऊंगी, यहाँ पे सबको देख के सबके दिमाग में एक ना एक चीज़ें आई होगी कि मैं ये लूँगा। ख्वाब तो हर कोई देखता है, ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन ख्वाब देखने के बाद उसको पूरा करने के लिए चलना नहीं दौड़ना पड़ेगा, और दौड़ के ही मंजिल को पाया जा सकता है। तो धन्यवाद। લોકો નસીબમાં વિશ્વાસ કરે, નસીબમાં કેટલા લોકો વિશ્વાસ કરે? ઘણા લોકો નસીબમાં વિશ્વાસ કરે, ઘણા લોકો નસીબમાં વિશ્વાસ નહીં કરતા, પણ એ નસીબના વિશ્વાસ માટે અમે એક શાયરી કરી યાદ કરો. પેલા પગ કાપે હાથ કાપે લઈને નસીબ હોય મત કર વિશ્વાસ ઉન હાથ की लकीरों पे, मत कर विश्वास उन हाथ की लकीरों पे। ये मेरे दोस्त, नसीब इसका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। વાહ વાહ પાકો એના પુલિસ એટલે આવડી જશે. મિત્રો હવે છે ને એકદમ સિરિયસ થઈ જતો. 50 લાખથી 1 કરોડ, જો 1 કરોડ રૂપિયા કમાવો સાહેબ ટ્રેડિશનલ માર્કેટમાં 100 કરોડ રૂપિયા લગાયા પછી 1 કરોડ કમાવા અઘરા છે 1 વર્ષમાં. મૂડી રોક્યા પછી પણ કેટલું ટેન્શન હોય છે. અહીંયા 0 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 7,400 રૂપિયામાં તમને 20,000 રૂપિયાની પ્રોડક્ટ મળી ગઈ. મતલબ પ્રોડક્ટ લીધા પછી પ્લસમાં હું કંઈ ના કમાય હોય, પણ એ પ્રોડક્ટ લીધા પછી ઘરના ફેમિલીને હેલ્થ સારી કર્યા પછી પૈસા આવવાનું ચાલુ થાય. આનાથી વિશેષ શું જોઈએ? કોઈ ટેન્શન વગર. તો 50 લાખથી 1 કરોડ જે મિત્રોએ કમાયા છે એમાંના એક મિત્ર છે, અહીંયા હું અત્યારથી કહી દઉં, એ પણ કહેશે આ જે કોલ્ડ ડ્રિંક જે છે ને આપણું આજનું હેલ્ધી ફૂડ,
એ જીતેન્દ્ર શર્મા સર दोस्तों नमस्कार। यहाँ पे आज एक तो कितने नए लोग आए होंगे काफी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पे आपका हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद चाहता हूँ। दूसरी चीज अभी आपको वंदा मैडम ने कम से कम वंदा मैडम ने करीब 1 घंटे में सब कुछ समझाया। मेरे को भी आज से 1.5 साल पहले एग्जैक्ट 18 महीने के पहले मेरे को भी उन्होंने मेरे को ये बताया था कि बोले ऐसे ऐसे ये प्लान है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जब ये चकेड़े मांडे ना चकेड़े, तो मेरा दिमाग बंद हो गया। मैं कहना फिर आप लोग मेंबर बनाओ दिया है। दिमाग में कितने लोगों को नया लगेगा कि तो मेंबर बनाने का काम है ना, चैनल बनाने का काम है। लोगों ने दाढ़ी मां हाथों का काम से, ठीक है, कितने लोगों को लगेगा। लेकिन दोस्तों ये कोई चैनल बनाने का, ये मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है। ये देखो एक आने वाले जमाने का बहुत बड़ा बिजनेस मॉड्यूल है। आज यहाँ पे तमाम जितने भी लोग आ रहे हैं, किसी ने 25 लाख कमाया, किसी ने 500 से स्टार्टिंग किया अभी, ठीक है। मतलब पहला स्टेप 500 है। करोड़ भी जो कमा रहे हैं उनका भी पहला स्टेप 500 रुपए से शुरुआत हुई, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे करोड़ों रुपए तक पहुंच सकते हो। अभी एक बात बताओ, अगर मार्केट में आपको महीने के लाख रुपए कमाने तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? कम से कम 1 करोड़। उसके बाद भी काम तो करना पड़ेगा। गारंटी है धंधा चलेगा? कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप नॉर्मली पहले अगर आपको क्या बोलते हैं ब्यूटी पार्लर अगर खोलना हो घर पे, तो कितना रुपया चाहिए मिनिमम? है 1 लाख से 1.5 लाख रुपए। दुकान लेनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद वो चूरन चटनी वगैरह सब लाना पड़ेगा, मुंह पे लेबल लगाने के लिए। मेरे को पता नहीं, मैं तो गोदरेज नंबर 1 से नाता हूँ, ठीक है। तो मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए मिनिमम लगाना पड़ेगा। उसके बाद में भी काम तो करना पड़ेगा। और गारंटी है धंधा चलेगा? नहीं, ठीक है। हम लोग एक ही बात जानते हैं, पैसा लगाया उसको धंधा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जमाना चेंज हो रहा है, जहाँ पे पैसा नहीं लगता है उसको बहुत बड़ा धंधा बोलते हैं, ठीक है। चलो मैं दे दूं आपको 1 करोड़ रुपए, चलो ऐसा धंधा बताओ जिसमें महीने के 10 लाख रुपए मिले और मेरा 1 करोड़ रुपए सेफ रहना चाहिए, बोलो। नहीं है ना। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्त कि मेरे साथ में आ जाओ, जो भी आपके साथ जिसने भी आपको बुलाया उसका हाथ पकड़ लो और 1 साल काम करो, महीने के 10 लाख रुपए आना चालू हो। और खास करके मैं यंगस्टरों से बोलता हूं, ठीक है। इंडिया का भविष्य किसके हाथ में है? यंगस्टरों के हाथ में, ठीक है। लेकिन वो क्या बोलते हैं पता है? कोई बैसवालू काम न थी। मेरे को अभी तक ये पता नहीं हो कोई बैसवालू काम कैसा होता है। कोई बैक ऑफिस नु काम न थी, क्या बोलते हैं? है मेरे पास में, किसी को चाहिए तो बोलना। बैसवालू काम है। मेरे दोस्त एक अग्रवाल थी बटवा में, उनके पास क्या पूरे अहमदाबाद का सुलभ शौचालय बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है। वहां पे खाली मैनेजर बन के बैठे रहना है, कस्टमर ही करके जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। और 2 ही पैकेज है वहां पे। देखो ये मैं मजाक में बोलता हूँ, बाकी देश का भविष्य उनके हाथ में। तो दोस्तों समझो, हम लोग मोबाइल के पीछे, यंगस्टर इधर पीछे BMW मर्सिडीज का वो लोगो लगा के रखते हैं, ठीक है। और काम कौन सा करते हैं? महीने 10,000 रुपए कमाने का, स्प्लेंडर चलाने का। अरे कम से कम जो जिसमें BMW मर्सिडीज आती है वो काम करना तो चालू करो। और यहाँ पे साबित कर दिया, काफी लीडर बैठे यहाँ पे। हमारे नितेश सर 18 महीने में, 22 महीने में 6.5 करोड़ रुपए क्रॉस किया। 6.5 करोड़, 3 से 4 लाख रुपए। कितना? 3 से 4 लाख रुपए। और हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं गले पे 135 का मसाला खाने में। और कितने लोगों को मैं बोलता हूँ, बोले आप गाटला बेचवानू ना फावे। क्या बोलते हैं? गाटला बेचवानू ना फावे साहब।
આજે મને શરમ આવે मैं तारी भली थाय मैं एक बात बताओ वो अक्षय कुमार लेटरिन में जाके हार्पिक बेच रहा है और तेरे को इतनी अच्छी प्रोडक्ट बेचने में शर्म आ रही है और अपने को बेचने का धंधा कर रहे हैं। सेल्समैन है क्या हम लोग? सेल्समैन है हम लोग? नहीं, हम लोग सेल्समैन नहीं है, हम लोग प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो काम सेलिब्रिटी कर रहे हैं वही काम हम लोग कर रहे हैं। इतना ही काम करना है कि भाई अच्छी प्रोडक्ट है, एक बार देख लो, इतना ही काम करना है ना, और इससे विशेष क्या करना है? और अपना काम है तो अपने हाँ, अपना काम है, अपने खुद बॉस। हाँ, अपने खुद बॉस। लेकिन मार्केट में बस वही मेरे को तो नौकरी चाहिए 20,000 की नौकरी मिल जाए, 25,000 की नौकरी मिल जाए। अरे तू क्या खुदा बन जाएगा 25,000 में? कम से कम नौकरी देने वाला बनने भाई। नौकरी लेते जब हमेशा देखते कटोरा लेके नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, यही काम। साहब मेरी 1-1 लाख रुपए की नौकरी वो सैलरी थी, ये मेरी वाइफ बैठी, मैंने कभी 6 महीने से ज्यादा नहीं किया। बोलो कितना? 6 महीने से ज्यादा नहीं किया। अपने को वो काम नहीं चाहिए, सुबह टिफिन लेके जाना, वही जिंदगी, वही फटी हुई, बस वो जिंदगी नहीं चाहिए। सुबह 10 बजे जाना, शाम को 7 बजे आना, 10 साल बाद भी वही रूटीन नहीं। आज ये बिजनेस में सर एक बात बताऊं, यहाँ पे पैसा तो है ही है, लेकिन पैसे के साथ में नेम और फेम दोनों चीज यहाँ पे। और 7,411 जैसे मैडम ने बताया 11,900 और 7,400 के 2 प्रोडक्ट है। जितना पैसा दिया उतने की प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है। इसमें एक फैसिलिटी है, नॉमिनेशन फैसिलिटी, जो आपको बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगी। करोड़ों रुपए का धंधा लगा लो सर, अगर हम लोगों को अगर कुछ हो गया ना, कल से अपनी वाइफ नहीं बैठ सकेगी धंधे पे, तो अपने घर में इनकम 0 हो जाती है, क्योंकि EMI वगैरह तो चालू ही है, अगले महीने से क्या। लेकिन यहाँ पे दोस्त हम जैसे ही बिजनेस चालू करते हैं तो अपने इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी हो गई। मान लो आपके महीने की 2-3 लाख रुपए इनकम आ रही है, चलो हमको कुछ हो गया तो वो नाम अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब घर पे जितनी इनकम जा रही है वो तो नहीं तो जाती रहेगी। लेकिन फिर भी मेंबर बनाओ। अरे बन गया, मेंबर बन गया। मेंबर बनने से सर महीने 5 लाख रुपए आता है, बोलो तो बन जाना चाहिए कि नहीं बनना? कितने लोग बोलते हैं साहब उल्लू बनाओ ना धुंधो, क्या बोलते हैं? अभी ये देखो, ये रात के सामने एक उल्लू खड़ा, मेरे को भरत भाई ने उल्लू बनाया तो महीना 3-4 लाख रुपए आने लग गया, तो उल्लू बन जाना चाहिए ना सर। मेरे को ऐसा होशियार नहीं बनना कि वो गल्ले पे बैठ के भी 10-20 हजार रुपए की बात करूं, और वो मेरे को इतना होशियार नहीं बनना है। मैं उल्लू ही सही, महीने 10-20 लाख रुपए कमाना है तो उल्लू बन के कमाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों शुरुआत करो, और कुछ भी डाउट या कुछ भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पे क्लियर करके जाइएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, गणपति बाप्पा। योगेश ठक्कर, अमदावाद થી છું, લોકલ। સૌથી પહેલા આપણી ઉમરતાની ગણવાડા દઈએ બંને। दोस्तों जो घણા બધા લોકો અહીંયા નવા માણસો છે અને જે લોકો પહેલી વાર આવેલા હોય, એવી રીતે સેમ 18 મહિના પહેલા મારા એક મિત્રનો ફોન આવ્યો હતો કે યોગેશ ક્યાં છો? કે વખતે આવા કોઈ સેમિનાર નહોતા, કોઈ પ્રોડક્ટ ના મળે, પ્રોડક્ટ જોવાય ના મળે, પૈસા આજે બરોબર મહિના પછી પ્રોડક્ટ આવે, એ સમયની વાત કરી રહ્યો છું, રાઈટ? અને મને ફોન આવ્યો કે યોગેશ ક્યાં છે? મેં કીધું લોકડાઉનનો ટાઈમ છે, ઘેર જ હું ને, ક્યાં જવાનું છે? તો ક્યાંય જવા એવું હતું જ નહીં, જ્યાં જઈએ ત્યાં કોઈ પૂછીએ તો કે ઘેર આવતા નહીં, આપણે એમના ઘેર મળવા જઈએ તો એ ના પાડી દે, એવો સમય હતો, રાઈટ? મને કે પિનાકર હોટલ પર આવો ને, ફર્સ્ટ ક્લાસ બેહતરીન પ્રોડક્ટ આવી, સારામાં સારી પ્રોડક્ટ છે, જોવા જેવી। તો ચલો અમે ફ્રી છીએ અત્યારે પિનાકર હોટલ ટાઉનની બાજુમાં, એલિસ બ્રિજ અમદાવાદ, ત્યાં હું જોવા ગયો। મને 1 કલાક એક પ્રોડક્ટ માટે સમજાયા। એ એક બીજા બી મિત્ર હતા, એક બરોડાથી બિલોંગ કરતા હતા, મને જેને ફોન કર્યો હતો અમદાવાદ, બંને મિત્રોએ મને આ પ્રોડક્ટ વિશે સમજાવ્યું, એની થેરાપી સમજાવી, મને આ પ્રોડક્ટ અને એની ટેકનોલોજી સમજતા વાર ના લાગી, કે થોડું ઘણું આપણે હેલ્થ મોડેલો મળે છે એટલે વાર ના આવે। પણ પ્લાન મારે સમજવો હતો, એ ફરી સમજવાની મેં વાત કરી, મને પ્લાન ફરીથી સમજાવો। તો બેઝિકલી વર્ષોથી આપણે નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં કાર્યરત છીએ, એટલે આપણે પૈસા કમાવાનું બી જોશ વધારે હતું। એમને ફરીથી મને પ્લાન સમજાવ્યો, અને પ્લાન સમજ્યા પછી દોસ્તો જેમ અત્યારે વંદના મેડમે તમને પ્લાન અને પ્રેઝન્ટેશન બતાવ્યું, અને 500 રૂપિયાથી લઈ અને
ઘણા બધા લીડરો શેરિંગમાં આવ્યા કે હું આટલા કમાયો. તો તમારે બી એ જ રસ્તે જવું હોય, સારી હેલ્થ અને સારી વેલ્થ, તો એના માટે એક નિર્ણય લેવો પડે. શું લેવો પડે? નિર્ણય લેવો પડે. એ તમારે લેવો પડે. મેં એ દિવસે નિર્ણય લીધો. મને ખ્યાલ હતો મેં ધીરુભાઈ અંબાણીના પુસ્તકો બહુ વાંચેલા છે. વિચારો પર કોઈનો ઇજારો નથી. એ પુસ્તકની અંદર એક સેન્ટન્સ ધીરુભાઈનું લખેલું છે કે ધીરુભાઈ કાલે મિટિંગમાં બેઠા હતા ત્યારે એમને પૂછવામાં આવ્યું કે ધીરુભાઈ તમારી સક્સેસ, તમારી સફળતાનું રહસ્ય શું? એમને એક જ વાક્યમાં જવાબ આપ્યો હતો કે જે દિવસે હું કોઈ બી પ્રોજેક્ટ જોઉં છું તો દિલથી જોઉં છું, પ્રોડક્ટ કમ્પ્લીટ મારા સમજમાં આવી જાય એટલે હું 80 મિનિટે કાચી સેકન્ડે ત્યાં ઓન ધ સ્પોટ હું નિર્ણય લઈને સ્ટાર્ટ કરું છું. એ મારું સફળતાનું રહસ્ય. એમ તમારે બી જો આની અંદર સફળતા થવું હોય ને તો નિર્ણય એવો લેવો પડશે. એવો મેં નિર્ણય 18 મહિના પહેલાં લીધો હતો દોસ્તો. નિર્ણય લીધો ત્યારે એકલો હતો. ખબર હતી કે માર્કેટમાં ના પાડવાવાળા બહુ જ મળશે. એ એડવાન્સમાં ખબર હતી. કોઈનું કંઈ વિચારે છે. મારી વાઈફનું મેં નહોતું પૂછ્યું. હું હોટલથી ઘેર ગયો ને એને તો ખબર હોય આપણે નેટવર્કિંગ કરતા હોય મને કે શું નવું લઈને આવ્યા? એ કંઈ લાવ્યું નથી. મારી મિત્રને મળવા આવ્યું. 10 દિવસ પછી કુરિયર આવ્યું. ઘરમાં કુરિયર ખોલ્યું એ પહેલાં માથા ત્યાં પાછું નવું ચાલુ કર્યું. કહું છું નોકરી જઈ જાઓ. કેટલા વર્ષોથી કરો છો? કેટલા બંગલા પણ કે બનાવી દીધા? એના કરતાં છોનો મને નોકરી આ પહેલો જ એનો શબ્દ કે આપણો કંઈ કરવું નહીં, મેં કંઈ જ કર્યું નહીં. આ મિત્રએ મને ગિફ્ટ આપેલી છે. એ તારા માટે છે. તારા પ્રોબ્લેમ છે ને એના માટે. આવું કંઈ નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં આવી જે ગોધરા જેવી પ્રોડક્ટ જોઈ છે પ્રોડક્ટ આવે જ નહીં એમ કરીને એને સમજાવી દીધી અને આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું. આજે 18 મહિના થયા અને એક પછી એક અપ ટુ ડેટ વ્યક્તિઓનો મળતો ગયો. સારા વ્યક્તિઓ મને મળતા ગયા. એ વ્યક્તિઓ આજે જબરજસ્ત લીડરો થઈ ગયા. પોતાની જાતે લીડરશિપ લઈ લીધી અને એ લોકોની મહેનત, કંપનીની સિસ્ટમ અને તમારા બધાનો આશીર્વાદ 85 લાખ રૂપિયા ક્રોસ કરે. કારણ એક જ નિર્ણય, સાચો નિર્ણય. એને એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. બાબુભાઈ આપ્યું મને, એમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું. મારું બીજું એક્ઝામ્પલ યાદ આવ્યું. બરાબર? તો સમજી જજો એક્ઝામ્પલમાં તો વાંધો નહીં આવે. એક ગામની અંદર એક ભાઈનો ગધેડો બીમાર હતો. વિચાર કરતો તો શું કરવું છું? ગધેડો કંઈ બોલે તો નહીં. મને આવું થયું છે, તાવ આવ્યો છે, એવું તો કંઈ બોલી ના શકે. કરવું છું. એને યાદ આવ્યું કે આપણા ગામમાં બીજા કોઈને બી એક ગધેડો છે અને એનો ગધેડો બીમાર પડે તો એને પૂછ્યા છે મને તું તારો ગધેડો બીમાર પડે તો ત્યાં શું કર્યું? એટલે ભાઈ એને પૂછવા ગયો તમારો ગધેડો હતો બીમાર પડે તો તમે શું કર્યું? કે ગાંઠલેટ પીવડાવ્યું. એને ઘેર જઈને ગાંઠલેટ પીવડાવ્યું. ગધેડો મરી ગયો. ફરી પેલાને ઘેર ગયો. આવું કહે તો ગાંઠલેટ પીવડાવ્યું, ગાંઠલેટ પીવડાવ્યું, ગધેડો મરી ગયો કે મારો મરી ગયો. માર્કેટમાં પૂછવા જશે ને તો આવું નથી. એક્ઝામ્પલમાં તો ગધેડો મરી ગયો, આ તો આપણને મારી નાખે. ક્યારેક કોઈને પૂછવા જતા નહીં. આ જે નિર્ણય લીધો અને કામ ચાલુ કર્યું. મારા માટે તાળી પાડવાની જરૂર નહીં પણ કે લીડર જે મારી ગ્રેટ અપ્લાય છે નંબર 1 ધર્માંગ પંડ્યા સર, એમના માટે મહેતા સર બરોડા, આ બંને લીડરો માટે જોરદાર ફરીથી એકવાર તાળી. સ્ટેજ ઉપર ના ઓકે. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ સો મચ. જોરદાર મિત્રો. હવા મજા આવશે સાંભળવાની. કારણ કે એવી રીતે કરોડ રૂપિયા કમાયા, કેવી રીતે કમાયા જઈ શકાય એના માટે તમારે 10-15 મિનિટ ફરવા. પછી જેને ગણેશ ભગવાનની પૂજા કરવાની ઉતાર હોય કે 6 વાગે જઈ. તો મિત્રો ફરીથી એકવાર એવા જબરજસ્ત લીડરને હું અહીંયા ઇન્વાઇટ કરીશ. એમની જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે એમને વધારશું. મિસ્ટર ઉર્મિલ સોની સર. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. તમારા કરતા મારી એનર્જી વધારે લાગી રહી છે. એનું કારણ કેમ ખબર છે? પાર્ટી પડી જજો. હલો યાર આપણે એનર્જી આવે પછી જ શરૂઆત કરીશું. કારણ કે આનાથી વધારે એનર્જી ધર્માંગભાઈ આવશે ત્યારે તમારી. અને
પાછળ એનર્જી માટેની વ્યવસ્થા આપણે કરી જ છે આ વખતે, પણ આ બરોબર એનર્જી હશે તો જ જેતુભાઈથી ડાકણું ખુલશે. तो दोस्तों मैंने भी आप लोग जैसे यहाँ पहली बार कितने लोग आए हैं? क्या बात है, कितने सर, जोरदार क्लैपिंग हो जाए. आप ही की तरह जीतू भाई शर्मा ने जैसे आज वंदना जी ने प्लान बहुत बढ़िया तरीके से लिया, मैं समझ में आया सब लोगों को? Yes. मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा, पर मैं मेरी वाइफ को लेकर गया था, उसने 3 बार पूछा था मुझे कि ये 5000 सचमुच आते हैं? मैंने कहा ये जीतू भाई का कॉल नंबर है, और उसने कॉल भी करके टैली कर दिया, 5000 आता है बराबर. तो आप लोगों को समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, आप लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए. हम लोगों को वो दिन इतना समझ में आया था कि 5000 आते हैं, कैपिंग बताई, 36,000 एक आईडी पे आते हैं, 3 आईडी से करो तो 1,08,000 आते हैं. तो दोस्तों उसी दिन ठान लिया था, घर जाके चेक बनाया था यूनिवर्सल बैंक का, उसमें एक फिगर लिख दिया था कि रोज का कितना चाहिए, 1,00,000 रुपया चाहिए. और दोस्तों वो आज आ रहा. वाह. तो ये क्यों हुआ पता है आपको? सब कितने को यहाँ एवरीडे 1,00,000 चाहिए? हाथ खड़ा करो. बराबर, रेडी हो सब लोग? तो जो लोग नए आए हैं उनको क्या करना पड़ेगा? पहले ज्वाइनिंग लेना पड़ेगा. मैंने ऑन द स्पॉट वो टाइम डिसीजन लिया, बराबर. और कोई मुफ्त में चीज मिलती है ना हमें तो मजा नहीं आता. तो आपको करोड़पति बनना है तो मैं 3 चीजें आपको दूंगा जिससे आप 100% करोड़पति बन जाओगे, मगर उसकी फीस है 5,000 रुपया. यहाँ मेरा मोबाइल नंबर लिख दो. आप सब लोगों को फोन पे करना है. कितने लोग तैयार है 5,000 देने के लिए? क्या बात है, जोरदार. मगर दूसरी कंडीशन भी है. ये 3 चीजें मैं जो आपको बताता हूँ वो आप 100% एवरीडे करोगे, जुम्मे जुम्मे नहीं, एवरीडे. जैसे हम ब्रश क्या करते हैं? एवरीडे करते हैं. स्नान एवरीडे करते हैं. काफी लोग तो वो भी तो वो 3 चीज आप लेने के लिए तैयार हो? Yes. दोस्तों पहला आपका क्या होना चाहिए, कोई बताएगा इसमें से? आप लोगों के पास भी होगा, ऐसा नहीं है मेरे पास ही है. ऐसी क्या चीज चाहिए कि जो आपको करोड़पति नहीं, यहाँ से 100 करोड़ भी दिलवाएगी? कोई गैस कर सकता है? गोल. और कोई? एनर्जी. हाँ, खुद पर भरोसा, एक्शन. बहुत बढ़िया. और कोई? आग होनी चाहिए. आग होनी चाहिए. ओके, लगा देते हैं आप. दोस्तों आपको क्या चाहिए पता है आपको? पर्पस चाहिए आपको. आपका पर्पस क्या है, ये जब आपका क्लियर होगा तो बाकी ऑटोमेटिक सब हो जाएगा. कि व्हाई ज्वाइन ई बायोटोरियम, ये पर्पस होना चाहिए. पहली बार कितने आए थे? जरा हाथ खड़े किए. हाँ, यस सर, आप खड़े हो जाए. आपने पूरा प्लान देखा, प्रोडक्ट देखा, आपको क्या 3 चीज अच्छी लगी वो आप बताओ. जो हेल्थ रिलेटेड बताइए, हेल्थ. दूसरा एनर्जी जो बता रहा ना, एनर्जी वो हेल्थ में आ गया. दूसरी चीज क्या लगी आपको? पैसिव इनकम बता रहा. पैसिव इनकम. दूसरी. जोरदार. और क्या लगाया था? कोई दूसरा भी बोल सकता है. हैप्पीनेस आती है, क्योंकि लोगों की हेल्थ अच्छी होती है तो हमें खुशियां मिलती है. और दोस्तों मैंने खुद एहसास किया है कि कोई ऐसी जगह किसी का पैसा जाए, हमारे घर आए, ऐसे मैंने 1-2 काम आगे किए थे तो मेरे जो कमाया था ना वो भी चला गया. और यहाँ दोस्तों मैंने ये प्लेटफॉर्म पर टोटल आज तक 1,67,00,000 रुपया अर्निंग किया है. और मैं अगले वीक मेरे बम्बई फ्लैट का दस्तावेज करने जा रहा हूँ. बराबर. तो ये ताकत दोस्तों, ये सुकून वाला पैसा. तो यहाँ से आप 1 करोड़ कमाओगे ना तो 10 करोड़ ऐसे ही हो जाएगा.
तो जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। तो ऐसा ही दोस्तों, जितने लोग आज पहली बार आए हैं उसकी 3 वजह लगो कि मुझे क्यों ये करना है। क्योंकि दोस्तों ये प्रोडक्ट से मेरी वाइफ का 20 साल पुराना माइग्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, नहीं तो एवरी वीक उसे कॉम्बिफ्लाइन लेनी पड़ती। मेरा छोटा भाई और मेरी मदर को नई लाइफ मिली। मेरे छोटे बच्चे को एक जगह यहाँ पैर में ऐसा प्रॉब्लम था कि वहाँ थोड़ा सा भी कोई छू ले तो चिल्लाने लगता। वो 5 दिन यूज किए प्रोडक्ट, कब गायब हो गया वही पता नहीं है। नहीं तो कोई MRI रिपोर्ट एक्सरे में वो नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये मुझे वजह मिली कि इतना बेनिफिट होता है। मेरा घर टैबलेट फ्री हो गया तो मैं मेरी पूरी यूनिवर्स को टैबलेट फ्री नहीं कर सकता। यस। तो वजह ढूंढो आप, ये क्यों करना है। और वो टाइम सर कोरोना था जब हम लोग जुड़े थे। इतने लोग भी हम इकट्ठे हो सकते नहीं थे। 25 लोगों से ही कंपनी शुरू हुई थी चिखली गांव की, सूरत के बगल में, और आज 3.5 लाख का परिवार हो चुका है। ताकत हमारी नहीं है, हमने तो 10% काम किया, 90% काम किया है एक कंपनी की प्रोडक्ट है दोस्तों। यस। डॉक्टर सागर जोशी के लिए जोरदार दोस्तों 10% काम ही हमने किया है, बाकी 90% काम ये कंपनी का प्लान कर रहा है, जो दिन में 4 बार इनकम दे रहा है। यस। यस। खाली कम हो गई क्योंकि सबकी 4 बार नहीं आ रही। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए बताए किसी को? दूसरी चीज पर्पस के बाद इसको मैं गिफ्ट दूंगा, सबको गिफ्ट दूंगा। चलो आज है ही कुछ विजन। और कोई फटाफट बोलो। हाँ विजन और हाँ भाई 5,000 अब लेने ही पड़ेंगे नहीं धर्मांग में, ऐसा लग रहा है। पहला भी आंसर मैंने दिया, तीनों 3 आंसर मैं दूंगा ना तो आपको 5,000 के बिना भी रूम बंद कर दो। वो हम लोग कर रहे हैं, धर्मांग भाई, उर्मिल सोनी, योगेश पटिया। बोलो क्या बच्चों की लाइफ, बच्चों की लाइफ चलो मैं लिख देता हूँ। होनी चाहिए। क्या लिखा पढ़ सकते हो? कंसिस्टेंस एफर्ट्स, कोई छुट्टी बुट्टी नहीं। यहाँ दिवाली में भी पे आउट आता है कि नहीं आता? यस। बराबर। बकरी ईद होती है तो भी आता है, आज गणेश चतुर्थी है तो भी आएगा। यस। सुबह का आ गया ना धर्मांग भाई? आ गया। धर्मांग भाई एक ही है यहाँ के जो सुबह का ले रहा है। सुबह पर हमारा फोकस होता। तो दोस्तों कंसिस्टेंस एफर्ट्स होना चाहिए। बराबर। आपने देखा ना कंसिस्टेंट एफर्ट्स कैसा है। करोड़पति कैसे आएगा? लक्ष्मी चांदला करने आई है और हमारा डेस्टिनेशन कुछ अलग चल रहा है। तो अभी भी जितने लोग हो, किसी को जल्दी है तो वो जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5 लोग भी रहेंगे तो भी बहुत है। क्योंकि इसके बाद जो धर्मांग भाई आने वाले हैं, इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रोज नहीं आते बराबर, क्योंकि उनका बाहर घाट बहुत ज्यादा चलता है। तो कंसिस्टेंस एफर्ट्स चाहिए। आज कोई भी देखो आप जो इंडस्ट्रीज में सक्सेस हुआ है, सचिन तेंदुलकर, कंसिस्टेंस एफर्ट्स। अमिताभ बच्चन, तो कंसिस्टेंस एफर्ट्स। कोई भी बंदे का नाम लो आप, जो यूट्यूब में भी माहिर है, जो नंबर 1 पर टेक्निकल गुरु गौरव, तो वो भी एवरीडे उसका एक वीडियो रखता है। कंसिस्टेंट एफर्ट यानी कि एवरीडे, दुकान खोलते हैं ना हम एवरीडे, ऐसे ही बायोटोरियम आपको एवरीडे करना पड़ेगा। बगल वाले को बोलो कंसिस्टेंट एफर्ट्स यानी कि एवरीडे करना पड़ेगा। बोलो अगले एवरीडे काम करना पड़ेगा। एवरीडे करना पड़ेगा, एवरीडे करना पड़ेगा। तीसरी कौन सी चीज होगी बताओ? हेलो, पहला पर्पस होना चाहिए, दूसरा कंसिस्टेंस एफर्ट्स, और तीसरा कमिटमेंट। किसके साथ? आपको अपने साथ।
ये कमिटमेंट आपका हुआ कि मुझे करना है। आई सेड एंड डिड इट, आई थिंक एंड डिड इट। ये 3 चीज आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं 2-4 पर्सनालिटी को इनवाइट करना चाहता हूँ। खड़े होकर से इनवाइट करने में नमस्कार। खुश तो बहुत होंगे, खुश हो गए, नाराज हो क्या? खुश है, खुश है। दोस्तों मेरा नाम धर्माक पंड्या है, बेसिकली अहमदाबाद से हूँ और आप सबका गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त हूँ, भाई को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कई सारे लोग टेंशन में बैठे हैं, टेंशन देने नहीं आया, टेंशन आपका लेने आया। दोस्तों आज से करीब 20 महीने पहले मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली जैसे आपको आज मिली थी। किसी ने इनवाइट किया था, यस और नो? किसी दोस्त ने, पड़ोसी ने, साले ने, बहनों ने, किसी ने भी आपको इनवाइट किया था और बहुत टाइम से पीछे पड़े हुए थे और आप लोग यहाँ पे आए हो। एग्री करते हो? यस। चाहते तो बहाने भी बना सकते थे, टाइम नहीं, गाड़ी में पंक्चर है, पेट में दर्द है, पड़ोसी की बीवी की शादी, ऐसा कुछ भी बहाना बना सकते थे। बहाना नहीं बनाया था। और यहाँ पे आए हो उसका मतलब यह है कि जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, जिंदगी में जो भी सपने हैं उसको जीना चाहते हो और स्वस्थ और मस्त रहना चाहते हो। यस। इसीलिए यहाँ पे आए हो। दोस्तों आज से 20 महीने पहले मैं भी चला गया था, मेरे दोस्त ने मुझे इन्वाइट किया था। मैं भी बहुत बहाने मारने का दिल था मेरा, लेकिन चला गया एहसान करने के लिए। आप भी शायद एहसान करने के लिए यहाँ पे आए हो क्योंकि बुरा लगेगा। ऐसे कितने लोग हैं जो 2, 3, 4, 5 बार पीछे पड़ा और फिर आ जाए? ऐसे कितने लोग हैं? पहले बुलावे में कितने लोग आए? आपके लिए तो दोस्तों आज जिसने भी ये प्रेजेंटेशन समझाया है, हमारी वंदना, क्या नाम है उनका? वंदना गई। ओके, उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। इस महीने पहले मेरे पास भी ये मौका आया था। मेरे पास 2 रास्ते थे, यस और नो। मुझे करना या नहीं करना। आपके पास कितने रास्ते हैं? 2। यस और नो। मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, मेरी वाइफ को प्रॉब्लम थी, बीपी का गोलियां चालू थी उसकी और हाथ उसके सूख पड़ जाते थे, तो मैंने प्रोडक्ट लिया। मैं कहा चलो पैसा दिया, उतने रुपए का प्रोडक्ट मिल गया, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो कम से कम इससे मैं पीछा छुड़ा लूंगा जिसने मुझे बुलाया। मैंने उसको बोला जब प्रोडक्ट लिया 11,900 दिया और फिर बोला कि दोबारा फोन मत करना भाई। मैंने समझ लिया प्रोडक्ट भी ले लिया। दोस्तों ऐसा एक एटीट्यूड था मेरा, मुझे करना था नहीं करना था वो बात की बात थी, लेकिन प्रोडक्ट का यूज करना शुरू किया। कसम से बोलता हूँ दोस्तों, वेरी नेक्स्ट डे से मेरी वाइफ की प्रॉब्लम पूरी खत्म हो चुकी है। यस। ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा मेरी माँ के लिए। ये मेरी माँ के लंग्स वीक है, 30% ही काम करते थे, तो मैंने मेरी माँ के लिए प्रोडक्ट खरीदा। जैसे मेरी माँ के लिए खरीदा तो मेरी वाइफ ने बोला मेरी माँ ने क्या गुनाह किया? मेरी सास के लिए मैंने खरीदा। आज मेरी सास बोलती है अगले जन्म में आपकी दामाद मिलना। क्योंकि दोनों को बेहतरीन रिजल्ट मिले हुए दोस्तों, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। जिंदगी में पहली बार ऐसी कोई प्रोडक्ट आई है, सिर्फ सोने से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और ऐसा कोई यहाँ पे नहीं होगा जिसको सोना अच्छा नहीं लगता। ऐसा कोई है? सिर्फ सोने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, या कोई परेशानी नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको ये प्रोडक्ट लेना है और सोना है। और यहाँ से दोस्तों कई सारे लोगों की जिंदगी में जो भी तकलीफें थी वो दूर हो चुकी है। और हमने भी ये प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को देने के बाद सब लोग हमें दुआएं देते हैं। यहाँ दोस्तों दुआओं के साथ पैसे कमा सकते हैं। ये सब समझ में तो आया होगा, ये और नो। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ जो मिलता है दोस्तों, लोगों की दुआएं मिलती है। जिंदगी में दुआएं खरीद नहीं सकते, यस और नो। यस। यहाँ लोग आपको दुआएं देते हैं, पैसा तो सारा अपने आप आएगा। दोस्तों
समझ में आ गया, लेकिन जयदेव भाई प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? सारा 11,900 कहाँ से लाने? प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ा मारे लेव तो जो है पैसा यस और नो। दोस्तों जो मैंने शुरुआत की और भरत भाई साधु जो मेरे साथ आए थे पहले, जब ये समझने में गया था उनको जब मैंने बुलाया, सबसे पहला जो आए थे योगेश भाई ठक्कर के बाद वो थे भरत भाई साधु। उन्होंने जब देखा बोले सर आप कर रहे हो, मैं कहा मैं कर रहा हूँ शुरू। बोले मुझे भी करना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। दोस्तों मैंने बोला कहीं से भी अरेंज करो, शायद आपके पास भी पैसे हो सकता है नहीं। तो उन्होंने कहीं से भी पैसे अरेंज किए, क्या 4% इंटरेस्ट पे पैसे लाए भरत भाई। आज उनकी इनकम है 1 करोड़ से ज्यादा। वाह। उनके पास भी बहाना था पैसा नहीं है, आपके पास भी बहाना है पैसा नहीं है। अगर उन्होंने पैसे का बहाना करके अगर ये बिजनेस नहीं किया होता तो 1 करोड़ नहीं आया। एग्री करते हो आप? यस। तो बहाने मत बनाओ, मैं हमेशा बोलता हूँ बहाने बना लो या पैसे कमा लो। और दोस्तों ये प्रोडक्ट शायद आप नहीं लो, ऐसा मानता हूँ कि चलो आपकी पैसे की प्रॉब्लम है और दिक्कत है और परेशानी है, शायद नहीं लेते हो प्रोडक्ट। दोस्तों अचानक कुछ भी हो सकता है। एग्री करते हो आप? एग्री करते हो? क्योंकि आपको अभी आज लग रहा है कि प्रायोरिटी नहीं है, मुझे कुछ हुआ नहीं है, मुझे कुछ होने वाला भी नहीं है। खुदा न करे आपको कुछ हो, भगवान न करे आपको कुछ हो। ऐसे बहुत सारे लोग थे इस दुनिया में जो आज नहीं है, उनको भी ऐसा ही लग रहा था कि हमें कुछ होने वाला नहीं है। केके को जानते हो सर? सिंगर, बहुत ही अच्छे सिंगर थे केके। 9 बजे उन्होंने अपना सेल्फी खींचा, उनको भी ऐसा ही लग रहा था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12:30 बजे इस दुनिया में नहीं थे, उनको भी ऐसा ही लग रहा था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इरफान खान को जानते हो आप लोग? इरफान खान को भी ऐसा ही लग रहा था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक डॉक्टर ने बोल दिया भाई वेरी सॉरी टू से आपको कैंसर। उनको भी ऐसा ही लग रहा था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋषि कपूर साहब को भी ऐसा ही लग रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अचानक डॉक्टर ने एक दिन बोल दिया ऋषि कपूर साहब को कि सर आपको भी कैंसर। तो आपको ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत बड़ी गलतफहमी आपकी है। सुषमा स्वराज जी को भी ऐसा ही लग रहा था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लेडी अस्पताल बना सकती थी खुद का, जिनके पास बहुत सारे पैसे थे, अचानक डॉक्टर ने बोल दिया कि मैडम आपकी किडनी फेल हो चुकी है, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आपको भी ऐसा ही लग रहा है हमें कुछ होने वाला नहीं, अचानक कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन ये प्रोडक्ट लिया आपने, कोई भी बहाना नहीं निकाला और ये प्रोडक्ट का यूज किया, गारंटी है दोस्तों यहाँ से बहुत सारे लोग को अच्छा रिजल्ट मिला है तो आपको भी मिलेगा। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बीमार होने के बाद ठीक होना अच्छा है या बीमार नहीं होना अच्छा है? क्या अच्छा है? बीमार नहीं होना चाहिए। दोस्तों चॉइस आपकी है, हॉस्पिटल की मैट्रेस पे सोना है या इस मैट्रेस पे सोना है, चॉइस आपकी है। यस। उधर वो मैट्रेस पे सोओगे कोई गारंटी नहीं है 5 लाख खर्चा करने के बाद घर आओगे कि नहीं आओगे। यहाँ पे ये है सर, यहाँ पे सोओगे तो गारंटी है वहां जाने की जरूरत नहीं। बहाना मत दिखा लो, क्योंकि एक मोबाइल भी अगर लेने जाओगे तो 11-12 हज़ार का अच्छा मोबाइल भी नहीं आता है। यस और नो? और शायद आपको पड़ी नहीं है, शायद आपकी पड़ी नहीं है, लेकिन उस माँ के लिए प्रोडक्ट जरूर ले लेना जिसने आपको जन्म दिया, उस पिताजी के लिए प्रोडक्ट जरूर लेना जिसको आपको पाल पोस के बड़ा किया। आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया आपने, यस और नो? ये बेहतरीन गिफ्ट हो सकती है, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। मेरी माँ को एक प्रोडक्ट मैंने गिफ्ट किया तो सबसे ज्यादा खुश है कि बेटा बहुत ही बेहतर। शायद आपकी नहीं पड़ी आपको, लेकिन उस माँ बाप के चेहरे पे खुशी जब होगी, कोई गिफ्ट दोगे और उसको इत्मीनान की नींद आएगी और जो बीमारियां हुई हैं उनको या होने वाली है वो नहीं होगी। दोस्तों इससे बड़ा कोई भी प्रसाद नहीं हो सकता, ये सौ नो। यस। इससे बड़ी कोई दुआ नहीं हो सकती। तो ये प्रोडक्ट आप जरूर लो। बिजनेस में काम करोगे तो पैसा बारिश की तरह बरसेगा। कैसे बरसेगा? बारिश की तरह। बारिश की तरह। दिन में 4 बार पैसे आते, कई बार 6 बार आते।
और मेरी महीने की इनकम है करीब करीब 15 लाख रुपया, और इस बिजनेस के माध्यम से 1,85,00,000 रुपया कमाया। मैंने जीएसटी भरा है 2.25 लाख रुपया, जीएसटी टैक्स। जितना मेरा पगार नहीं था पूरे साल का, उतने महीने का मैं जीएसटी भरता हूँ। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। और किसी को देखना तो मैं दिखा भी सकता हूँ। कितना लोग नौकरी करते हैं, जरा हाथ खड़ा करो। कि नौकरी कर चुका हूँ 20 साल। नौकरी का मतलब होता है नो कैरियर। और कितने लोग बिजनेस करते हैं, हाथ खड़ा करो। तो दो ही रास्ते हैं पैसा कमाने का, एक नौकरी और एक बिजनेस। और ये दोनों चीज हमें छोटी जिंदगी जीने पे मजबूर करता है, यस और नो। आज अहमदाबाद में घर लेने भी जाओ तो करोड़ से कम में घर नहीं मिलता है। एग्री करते हो आप? अच्छी एरिया में अच्छी जगह पे रहना है। सोच के देखो, सपने तो सबके हैं। क्या आप लोग के सपने हैं कि नहीं सर? अच्छे घर में रहना, अच्छी गाड़ी में घूमना, सपने सबके हैं। लेकिन हम लोगों ने छोटा मोटा बिजनेस और नौकरी करके वो सपनों को मारने का काम शुरू कर दिया। एडजस्टमेंट कर करके एडजस्टमेंट करने की आदत से हम मजबूत हो चुके हैं। कसूर उनका नहीं है जो हमारे भरोसे के ऊपर बैठे। आपके बच्चे सपने देखते हैं, उनको पूरा अधिकार है, लेकिन वो सपने पूरे करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। यस और नो? यस। दोस्तों, मर्द वो नहीं होता है जो बच्चे पैदा करता है, मर्द वो होता है जो बच्चों के सपने पूरे करता है। यस। अपॉर्चुनिटी आपने देखी और उसके बाद भी अगर सपने नहीं पूरे करोगे सर, तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। आप कितने लोगों को करोड़पति बनना है? हाथ खड़ा करो। तथास्तु। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया आपको, देख दिया नहीं, गारंटीड बनोगे। भगवान के पास हम लोग जाते हैं, यस और नो? भगवान के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? खुदा के पास जाते हैं कि नहीं? सर एक ही बात करते हैं, भगवान मुझे करोड़पति बना दे, यस और नो? ये बोलते हैं कि नहीं? कसम से बोलना, कोई आदमी साला मांगे बगैर नहीं आता। कभी बोला जाके भगवान थैंक यू, जो दिया है बढ़िया है, वो उसको रहने देना, ऐसा कभी बोला नहीं? मैं वही बोलता हूँ, जो दे रहे हो ना देते रहे। आप भगवान के पास जाते हो, मांगते हो, भगवान मुझे करोड़ की लॉटरी लगा दे। क्या बोलते हो? करोड़ की लॉटरी लगा दे, क्योंकि काम तो करना ही नहीं अपने। पता है काम करने से पैसे आएंगे, अपने को काम करना नहीं, ऐसे फोकट में पैसा। तो भगवान भी बोलता है, अभी नया जमाना हो गया, भगवान को सब भाषाएं आती है, यस और नो? साउथ में जाएंगे तो तमिल बोलेंगे, कन्नड़ बोलेंगे, है ना? तो मुंबई का किसी बंदे ने भगवान से बोला, भगवान मुझे करोड़ की लॉटरी लगा। भगवान ने बोला उसके असिस्टेंट को, भगवान ने बोले इसको खोपचे मिले क्या और इसको 2 तमाचे मार और उसको बोल बेवकूफ को, साले लॉटरी तो लगाने के तैयार हो, लेकिन लॉटरी की टिकट तो खरीद। यस। तो करोड़पति बनने के लिए आप तैयार हो, और करोड़पति का रास्ता यहाँ आपके सामने है। एक प्रोडक्ट तो खरीदना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। गारंटी है दोस्तों, दुआओं के साथ पैसे फोकट में मिलेंगे। यहाँ पे पैसा इतना आता है दोस्तों, पैसा खर्चा करते करते थक जाओगे, लेकिन सागर जोशी पैसा देते देते थकने वाले। भाई चलो बोली ना जाओ ना, कह दी।